So yesterday we were seeing some problems with the grammars, right? The first problem that we have seen was the ambiguity or the ambiguous grammar. That is, if for a particular string you can get more than one parse tree or more than one leftmost derivation or derivation, anything you can call it as. It's generally easy to remember it as you will get more than one parse tree. Okay, so if for a particular string from a grammar you are getting more than one parse tree, that grammar will be known as ambiguous grammar because the compiler will get confused which parse tree is the correct one which you have to choose. Because if the compiler chooses the wrong parse tree, the answer will be wrong. We have seen yesterday some equation was giving us the correct answer was 8, but one of the parse tree was giving the correct answer as 12. Okay, so we have to remove this ambiguity problem. To remove this ambiguity problem, we have seen there are various ways. Generally, by implementing these two methods, you can remove ambiguity from the grammar. The first is introducing associativity rules, making the operators either left associative or right associative according to their associativity, and by introducing the precedence rules. Okay, the operator having the highest precedence will be at the lowest level of the grammar, and the operators having the lowest precedence will be at the highest level of the grammar. Okay, by introducing these two rules, we have seen that we can remove the ambiguity. Anyone have any doubts? Okay. Now the second problem with the grammar is of left recursion. This is also a problem with grammars. Why this is a problem, we will see later. But first, let's see what I mean by recursion. Recursion, you understand, like, okay, just similar to your programming, you have recursion here. So there are basically two kinds of recursions: left recursive grammars and right recursive grammars. Right recursive grammars. Suppose you have a left recursive grammar, left context-free recursive grammar, something like this: A tends to A alpha or beta. Okay, where alpha and beta are non-terminals. Okay, suppose you have a context-free grammar, left recursive context-free grammar like this. How this is a left recursive context-free grammar? Left recursion means the expansion will always be on the left side. ये जो symbol है, okay, और ये जो symbol है LHS और RHS का, that will be same. This is the mean, क्योंकि यहीं से expand होगा, right? A अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा तो expand नहीं कर सकते, जो expansion होगा वो लेफ्ट साइड ही होगा, खाली यही वाला A expand होता जाएगा continuously. That is why this is known as a left recursive grammar. Right recursive grammar will look something like this. The vertex will appear on the right hand side of the non-terminal. Okay, alpha A or beta. Okay, alpha and beta are non-terminals. This is a right recursive grammar because यहाँ पे जो expansion हो रहा है, the expansion will take place on the right hand side. ये A expand होगा. Now let's see what is the problem here first. Suppose I have a left recursive grammar something like this: A tends to A or beta. Can you tell me which language is this grammar generating? You understand, right? From a grammar we get a language, है ना? ऑटोमेटा का बेसिक रूल है, ग्रामर जनरेट्स लैंग्वेजेस. उस लैंग्वेज में स्ट्रिंग्स होती हैं, है ना? ए बी, जैसे कल हम लोग देख रहे थे, सारी स्ट्रिंग्स थी, राइट? ए स्ट्रिंग के लिए ग्रामर एम्बिगुअस है कि नहीं? तो कैन यू टेल मी विच लैंग्वेज इज दिस ग्रामर जनरेटिंग? क्या जनरेट कर रहा है ग्रामर? रेगुलर एक्सप्रेशन बताओ लैंग्वेज का, विच लैंग्वेज दिस ग्रामर इज जनरेटिंग. थोड़ा सा पास्ट ट्री बना के देखो, इट विल बी इजी. सी सपोज यू वांट टू सी ये ग्रामर क्या लैंग्वेज जनरेट कर रहा है, तो द बेस्ट वे इज यू जनरेट अ, नहीं कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर तो ये है उर्विजा, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर दिस इज, आई एम which language this is generating. This is your grammar. A grammar generates language. From languages we get strings, various strings. Okay, for example grammar ये है A tends to A alpha slash beta. Language क्या है, उसको regular expression में लिखेंगे. कैसे? The best way is draw a simple parse tree. A alpha, either A can give you A alpha or A can give you beta. Okay, suppose A से मुझे A alpha मिला. Again you expand this A. Suppose I am getting A alpha. Again I can get A alpha. When I want to stop, I will stop with beta. Can I say the language of this grammar is beta alpha star? Beta तो पक्का पक्का आएगा,
बीटा तो पक्का पक्का आएगा when you want to stop this grammar, and you can get any number of alphas. That's why alpha star, right? Either you can get a single beta, तो यहाँ स्टार की जगह 0 रख देंगे, or you can get not a to the power nb, beta alpha star. So this grammar is beta alpha star. किसी को दिक्कत इसमें? ठीक है, समझ आ गया लैंग्वेज कैसे ड्राइव करना है। अब इस लैंग्वेज की बहुत सी स्ट्रिंग हो सकती है। फॉर एग्जांपल एक स्ट्रिंग हो सकती है खाली बीटा, एक स्ट्रिंग हो सकती है बीटा अल्फा, एक स्ट्रिंग हो सकती है बीटा अल्फा स्क्वायर, एक स्ट्रिंग हो सकती है बीटा अल्फा क्यूब। इस तरह इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स आर पॉसिबल। गॉट दिस? दिस इज अ ग्रामर, दिस इज द लैंग्वेज ऑफ द ग्रामर व्हिच यू राइट इन रेगुलर एक्सप्रेशन जनरली, एंड दिस इज योर स्ट्रिंग्स। ठीक है। Now there is a problem with left recursive grammars. Problem क्या है? Suppose this recursion is like a function. Suppose this recursion is like a function. तो सबसे पहले मैंने a function कॉल किया, I called a function. इस a function के अंदर मेरे पास दो ऑप्शंस है, either I can again call this a function और उसके अंदर अल्फा बाद में, और I can call बीटा। सपोज मैंने a function फिर से कॉल किया, तो अब इस a function के अंदर again I can call a function. Getting this? ऐसा हो सकता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कंपाइलर बार बार यही वाला प्रोडक्शन चूज करता रहे, फर्स्ट प्रोडक्शन, और हमेशा ए फंक्शन खुद के अंदर कॉल करता रहे, सो इनफाइनाइट लूप में फंस जाएगा, जस्ट लाइक नॉर्मल रिकर्शन। ओके, अगर ए फंक्शन के अंदर फिर से मैं ए फंक्शन को बार बार कॉल करता जाऊं, बिकॉज सबसे पहले ए कॉल कर रहा है ना, उसके बाद अल्फा या कुछ बीटा आ रहा है, राइट? जब ए फंक्शन पूरा खत्म हो जा रहा है तब अल्फा आ रहा है, राइट? हो सकता है वो बीटा चूज ही ना करे, वो हर बार ए अल्फा ही कॉल करता रहे, जिसमें से ए सबसे पहले वो कॉल करता रहेगा, राइट? सो ये एक इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा। दिस इज द प्रॉब्लम लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर्स। पार्सर्स होंगे, टॉप डाउन पार्सर्स, देयर आर टू काइंड ऑफ पार्सर्स, वी विल सी लेटर। दो तरह के पार्सर्स होते हैं, एक होता है टॉप डाउन, एक होता है बॉटम अप। जो टॉप डाउन पार्सर्स होता है वो ऊपर से नीचे आने की कोशिश करता है। सो व्हेन इट द टॉप डाउन पार्सर ट्राइंग टू कम फ्रॉम टॉप टू बॉटम, वो बार बार ए फंक्शन को ही कॉल करता चला जाएगा। ए पहले कॉल हो रहा है, उसके बाद कुछ अल्फा आ रहा है, हो सकता है ऐसा कि वो अल्फा कभी दिख ही ना पाए, लगातार ए को कॉल करता चला जाए। गेटिंग दिस? सो दिस इज अ प्रॉब्लम विद द लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर. We cannot supply left recursive grammars to top down parsers. This is the overall conclusion. अब आपके मन में there can be a doubt कि ठीक है, अगर ये लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर ऐसी दिख रही है, इसमें डाउट है, टॉप डाउन पार्सर्स अगर इसे क्लियर नहीं कर सकता है, सो लेट्स सप्लाई समथिंग लाइक दिस। मैं ऐसे कर देता हूँ, आई मेक दिस अ राइट रिकर्सिव ग्रामर लाइक दिस, राइट? अगर लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर इस तरह प्रॉब्लम है तो कंपाइलर को ये सप्लाई कर देते हैं, सिंपली इसको टर्न करके। यस और नो? यस और नो? कैन वी डू दिस? See, what was the language of this left recursive grammar? This was beta alpha star. Yes, Raghav, good. The language of this left recursive grammar was beta alpha star, right? इस right recursive grammar की language क्या है? Find out the language of this right recursive grammar. क्या है? What is the language of this right recursive grammar? Alpha star beta, right? सिंपल है, सेम तरीके से इसको करेंगे। ए अल्फा ए अल्फा ए, जब तक जाना जाते जाओ, जब स्टॉप करना यू स्टॉप विद बीटा। सो अल्फा यू हैव रिपीटिशन, बीटा यू कैन स्टॉप। सो स्टार बीटा इज द लैंग्वेज। आर दीज टू लैंग्वेजेस सेम? नो, राइट? दीज टू लैंग्वेजेस आर नॉट सेम। यहाँ पे बीटा से लैंग्वेज स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे लैंग्वेज अल्फा से स्टार्ट हो रही है, राइट? सो यू कैन नॉट डायरेक्टली ट्रांसफॉर्म अ लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर टू अ राइट रिकर्सिव ग्रामर और वो सप्लाई कर दो पार्सर को, ऐसा नहीं कर सकते। वी हैव टू डू समथिंग, डेफिनेटली वी हैव टू मेक दिस लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर एज राइट रिकर्सिव। इस लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर से राइट रिकर्सिव तो बनाना है, लेकिन एग्जैक्ट राइट रिकर्सिव नहीं बना सकते, थोड़े से चेंजेस करने पड़ेंगे ताकि लैंग्वेज सेम रहे। वी हैव टू मेक श्योर दैट द लैंग्वेज शुड बी सेम। दिस इज अवर सोल क्राइटेरिया। सो क्या करेंगे? कुछ नहीं, कोई अब इसमें कोई एल्गोरिथम नहीं है, ओके? यू हैव टू फॉलो। कैसे करना है?
फर्स्ट टू आइडेंटिफाई द लैंग्वेज ऑफ एनी ग्रामर, ठीक है। अब इसके और एग्जांपल्स देखेंगे। सपोज आई गिव यू दिस ग्रामर एंड आई आस्क यू make this grammar as right recursive. So what you have to do, first you identify the language of this grammar. Okay, language क्या थी? Beta, alpha, star, right? Now one minute, yeah. Now you transform this grammar into something known as beta a dash. Okay, because your grammar is starting with beta, right? So जो आपका फर्स्ट प्रोडक्शन होगा, the first production will always start with beta. उसके बाद जो अल्फा स्टार है, जो रिपीटिशन हो रहा है, you give the responsibility of this repetition to some other vertex or some other variable, कि कोई भी और वेरिएबल को दे सकते हो। से इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आई गिव टू सम अनदर वर्टेक्स a dash, कोई भी वर्टेक्स बना सकते हैं यहाँ पे। ओके, सो दिस मेक श्योर दैट योर और योर ग्रामर, ओके, दैट ऑलवेज स्टार्ट्स विद बीटा ओनली। फाइन। अब इस a dash की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस a dash इज टू रिपीट दिस अल्फा स्टार, राइट? द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस a dash इज टू रिपीट दिस अल्फा स्टार। अल्फा, अब ये जो अल्फा स्टार लैंग्वेज है, राइट, इस लैंग्वेज की स्ट्रिंग्स बताओ। व्हाट आर द स्ट्रिंग्स इन दिस लैंग्वेज? सबसे बेयर मिनिमम स्ट्रिंग क्या है इस लैंग्वेज की? एप्सिलॉन, राइट? एप्सिलॉन है ना। अगर यहाँ पे 0 रख दो तो एप्सिलॉन मिलेगा, राइट? एप्सिलॉन इज द बेयर मिनिमम। आफ्टर दैट यू कैन गेट अल्फा, आफ्टर दैट यू कैन गेट अल्फा स्क्वायर एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट? सो द बेयर मिनिमम स्ट्रिंग दैट यू विल गेट इज एप्सिलॉन। तो एप्सिलॉन एक आएगा। इसके सिवा अपार्ट फ्रॉम एप्सिलॉन यू हैव टू रिपीट दिस अल्फा, यू हैव टू रिपीट दिस अल्फा। अब अल्फा रिपीट कैसे करें? क्या मैं ऐसे अल्फा रिपीट कर सकता हूँ? अल्फा ए डैश, विल दिस रिपीट? करेगा ना। सपोज ए डैश है, ए डैश से मुझे अल्फा ए डैश मिला, आई वांट टू रिपीट अल्फा, तो फिर से ए डैश विल बी एक्सपेंडेड टू अल्फा ए डैश, फिर से दिस ए डैश विल बी एक्सपेंडेड टू अल्फा ए डैश, राइट? दिस इज हाउ आई कैन रिपीट अल्फा। यस और नो? फाइन, दैट दिस इज द removal of a left recursion from your grammar. अब इसकी जगह apart from this alpha a dash, can I write it like this? A dash alpha. This will also repeat from a dash. If I get a dash alpha, again from this a dash I get alpha. This is also repeating alpha. So is this correct? Is this correct or not? What was our problem, Kashika? We have to remove the left recursion, right? If you again write something like this, क्या ये फिर से left recursion नहीं बन गया? Isn't this again a left recursion? Right? That is why you cannot write it like this. क्योंकि अगर फिर से यही लिखोगे, definitely it is also repeating your alpha. ये भी alpha पर ये फिर से left recursion बन जाएगा. This will again be a left recursive grammar. So you have to write it like alpha a dash only. This is how you can make any left recursive grammar to a right recursive grammar. Now you do one question. E tends to E plus T slash T. First tell me whether this is a left recursive grammar or not. Is this a left recursive grammar? Is this a left recursive grammar or not? This is right. See the first symbol of the LHS and the first symbol of RHS. Okay, the expansion will be from the left hand side only. So this is a left recursive grammar. Now convert this left recursive grammar to a right recursive grammar. First identify the language of this grammar by making a small parse tree or something like that. Then do the exact thing which I have done here. जो पहला symbol was beta. Okay, beta definitely आ रहा है. तो पहले प्रोडक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि बीटा पक्का है स्टार्टिंग में. उसके बाद जो भी रिपीटिशन हो रहा है उसको किसी दूसरे वेरिएबल को दे दो. एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट वेरिएबल विल बी टू रिपीट दैट थिंग. ओके, जैसे यहाँ पे अल्फा स्टार रिपीट हो रहा था तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ए डैश को दे दी. सो द रिस्पॉन्स ए डैश वाज टू रिपीट अल्फा.
तो वो ऐसे रिपीट करेगा। डेफिनेटली एक एप्सिलॉन भी आ सकता है, इसलिए एप्सिलॉन भी यहाँ लिख रखा है। डू दिस। देखो, फर्स्ट आइडेंटिफाई द लैंग्वेज ऑफ दिस ग्रामर। ओके, कैसे करोगे? ट्राई टू मेक अ पास ट्री। ओके, छोटा सा पास ट्री बना के देख लो। ई टेंड्स टू ई प्लस टी। ओके, ई टेंड्स टू ई प्लस टी, ई टेंड्स टू ई प्लस टी. This will go on, so this will go on and on. When you want to stop, you stop e with a t. So can I say the language of the grammar is t plus t star? प्लस टी स्टार बार बार रिपीट हो रहा है ना, देखो प्लस टी स्टार बार बार रिपीट हो रहा है, और जब स्टॉप होना है तो टी से होना है। फाइन, सो द लैंग्वेज ऑफ दिस ग्रामर इज टी प्लस टी स्टार। किसी को दिक्कत परेशानी? द लैंग्वेज ऑफ दिस ग्रामर इज टी प्लस टी स्टार। तो बस लैंग्वेज पता चल गई तो फिर तो एक सेकंड का काम है। यू हैव टू ऑब्वियसली यू हैव टू स्टार्ट विद ई। अब ई को चेंज मत कर देना, बिकॉज स्टार्ट सिंबल हैव टू बी। ओके, ई से स्टार्ट करना है। ई की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो पक्का पक्का आ रहा है, दैट सिंबल हैव टू बी हियर, व्हिच इज द सिंबल दैट इज डेफिनेटली टी, है ना? क्योंकि अगर प्लस टी स्टार के ऊपर स्टार जीरो कर दूंगा तो ये पूरा गायब हो जाएगा, राइट? लेकिन टी पक्का आएगा, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि टी आना चाहिए। इसके सिवा जो भी बचा प्लस टी स्टार जो रिपीट हो रहा है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और वेरिएबल को दे दो, ई डैश को। नाउ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस ई डैश इज टू रिपीट दिस प्लस टी। तो कैसे रिपीट करेगा? प्लस टी ई डैश ऐसे रिपीट करेगा, दिस इज हाउ इट विल रिपीट। और एक चांस ये है कि एप्सिलॉन भी आ सकता है। गॉट दिस? ऐसे तो रिपीट करेगा ई डैश, अगर रिपीट करना है प्लस टी ई डैश, फिर से प्लस टी ई डैश, एंड so on and so forth. So this is how we have converted this left recursive grammar to right recursive grammar. तो अगर top down parsers बनाएंगे LL1 and all etc etc, so if you have a left recursive grammar like this, you have to convert that left recursive grammar to its equivalent right recursive grammar. Not exactly right recursive grammar, but its equivalent right recursive grammar, जहां पे language same रहनी चाहिए, language shouldn't be changed. और क्वेश्चन करो। Say you have a grammar like this: S tends to L or X, L tends to L, comma S or S. You have a grammar like this. Is this a left recursive grammar? How many productions this grammar have? How many productions this grammar have? 1 2 3 4, कितने? 4 है, राइट? एक ये एक ये एक ये एक ये, चारों प्रोडक्शंस में लेफ्ट रिकर्शन है। पहले वाले प्रोडक्शन मतलब ये जो दो प्रोडक्शन है इसमें लेफ्ट रिकर्शन नहीं है, राइट? इन दीज टू S टेंड्स टू L एंड S टेंड्स टू X, यहाँ पे लेफ्ट रिकर्शन नहीं है कहीं। इस वाले में लेफ्ट रिकर्शन है, राइट? इस वाले में लेफ्ट रिकर्शन है, जो सेकेंड लिखा हुआ है।
सो व्हाट यू हैव टू डू, खाली इसी में से लेफ्ट इक्वेशन हटाना है, पहला वाला एज इट इज रहेगा। और फाइनल जब आंसर लिख रहोगे तो उसमें इसको इंक्लूड करके लिखना। ज्यादातर मिस्टेक्स व्हाट यू विल डू कि ओके इसमें लेफ्ट इक्वेशन है तो इसको तो मैं हटा दूंगा अभी सिंपली, लेकिन वो भूल जाते हो जो पहला वाला था। ओके, सो मार्क्स विल बी डिडक्टेड, यू डोंट हैव टू डू समथिंग लाइक दिस। टू डू, पहले वाले में कोई लेफ्ट रिकर्शन नहीं तो उसको छोड़ दो, उसको कोई खिलवाड़ नहीं करना है। यू डायरेक्टली पुट दिस प्रोडक्शन, ठीक है, और इसमें से लेफ्ट रिकर्शन हटाओ जैसे अभी हमने हटाया। यू टेक दिस प्रोडक्शन एल टेंड्स टू एल कॉमा एस और एस, और इसमें से लेफ्ट रिकर्शन हटाओ। Do it. ऐसे नहीं नितेश, जैसे राइट, राइट बोथ द स्टेप्स, ओके। पहले स्टेप की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो सिंबल डेफिनेटली आ रहा है उसको लिखो, रिपीटिशन हो रहा है उसको किसी और वेरिएबल में दे दो। सेम प्रोसेस यू हैव टू डू एवरीवन। ओके, जस्ट ट्राई टू ड्रॉ स्मॉल पास्ट। सबसे पहले लैंग्वेज आइडेंटिफाई करो, व्हाट इज द लैंग्वेज। एस एस स्टार, कॉमा कहाँ गया, या कॉमा एस स्टार मे बी। ठीक है, लैंग्वेज तो सिंपल है, जस्ट ड्रॉ अ स्मॉल पास ट्री लाइक दिस, एल टेंड्स टू एल कॉमा एस, फिर एल टेंड्स टू एल कॉमा एस, एल टेंड्स टू एल कॉमा एस, दिस विल कीप ऑन रिपीटिंग एंड व्हेन यू वांट टू स्टॉप यू स्टॉप एल विद अ एस। ठीक है, तो क्या रिपीट हो रहा है, कॉमा और एस रिपीट हो रहा है, सो एस कॉमा एस स्टार, कॉमा एस स्टार इज रिपीटिंग, सो दिस इज द लैंग्वेज। बस अब इसके लिए लिख दो ग्रामर। डन एवरीवन।
या नितेश, राइट, सही है। तुमने क्या लिखा शेखर? ये प्लस कहां से आ गया तुम्हारे में शेखर? प्लस तो है ही नहीं पूरे ग्रामर में। ये और बीजा, राइट। फाइनल आंसर उर्विजा का सही है बिकॉज शी हैज इंक्लूडेड द फर्स्ट प्रोडक्शन। ओके नितेश, वो फर्स्ट प्रोडक्शन मिस मत कर देना एग्जाम में। ओके यू हैव टू इंक्लूड दिस एस वाला प्रोडक्शन आल्सो। ओके सबका हो गया। सो व्हाट यू हैव टू डू, दिस इज द लैंग्वेज ऑफ द ग्रामर। इस लैंग्वेज में ऐसा कौन सा सिंबल है जो डेफिनेटली आ रहा है? ये एस है। सो एल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये एस आए। इसके सिवा वॉट एवर इज कमिंग वो किसी और वेरिएबल एल डैश को दे दो। ओके नाउ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस एल डैश इज टू रिपीट दिस कॉमा एस स्टार। इस कॉमा एस स्टार को रिपीट करना है तो ऐसे रिपीट करेगा। एक एप्सिलॉन भी आ सकता है। और जो पहले वाला प्रोडक्शन था एस टेंड्स टू एल कॉमा एक्स, ये आ जाएगा ग्रामर में। ना दिस इज योर फाइनल आंसर। दिस ग्रामर विल बी सप्लाइड टू द टॉप डाउन पार्सर इंस्टेड ऑफ दिस। कोई दिक्कत परेशानी? एनी डाउट्स? संडे को टेस्ट है। ओके एवरीथिंग विल कम, जो फ्राइडे तक पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है एनी डाउट्स एनीवन? क्लियर है? एंड आई हैव टोल्ड, एक लास्ट टाइम मैं रिमाइंड करा देता हूँ, इन योर इंटरनल्स 50% विल बी ऑफ टेस्ट, 30% इज ऑफ असाइनमेंट्स एंड 20% इज ऑफ योर क्लास परफॉर्मेंस। ठीक है जितने लोग क्लास में रिस्पॉन्स कर रहे हैं ये उन्हीं को 20 में से मार्क्स मिलेंगे, बाकी सब अपने 80 में से काउंट करना। आई शुड रिमेंबर योर नेम बाय द एंड ऑफ द सेमेस्टर। Now, so we have seen two problems with the context-free grammars before making the parsers. Okay, first was the ambiguity, second was the left recursion. Right recursion is not a problem, right? We have seen that. Now, the third problem with parsers is, or the grammars is basically non-determinism. Non-determinism. Non-determinism क्या है? Suppose you have a grammar like this: A tends to alpha beta 1 or alpha beta 2 or alpha beta 3. Which are the non-terminals here? Which are the non-terminals? नाम बताओ सारे क्या? Tell me the names. Sir, alpha beta 1, alpha beta 2, and alpha beta 3. So non-terminals are those which will not further expand. हाँ ठीक है, but why 3 times alpha? Alpha is only one time, right? Alpha, beta 1, beta 2, beta 3. If I ask you the numbers of non-terminals, so the answer will be 4. Alpha, beta 1, beta 2, and beta 3, right? अगर प्लस 4 बार आ रहा है तो उसको एक ही बार बोलेंगे प्लस है ना, 4 बार नहीं बोलेंगे। And vertex is your A. So non-determinism problem is, suppose I give you this grammar and I give you this string alpha beta 3. This is the string. Now this string is applied to the syntax analyzer or parser जो कि हम create करेंगे बाद, और ये grammar supply कर दी मैंने। Now the work of the syntax analyzer or parser is to create the parse tree. अब parser क्या करेगा वो देखेगा, obviously it have to start with capital A, यहीं से start करना है, start symbols। अब तीन ऑप्शन है उसके पास। सपोज फर्स्ट टाइम ये ऑप्शन ले ले अल्फा, फिर देखे बीटा 1, नहीं
बीटा 1 तो नहीं चाहिए था, बीटा 2 चाहिए था, सो इट विल बैक ट्रैक, वो यहां से वापस जाएगा, इट विल बैक ट्रैक। नेक्स्ट टाइम ये सेकंड प्रोडक्शन चूज करेगा, अल्फा बीटा 2। अब उसे फिर बीटा 2 दिखा, बीटा 2 ही चाहिए था, व्हाट वी वांटेड बीटा 3, तो फिर से ये बैक ट्रैक करेगा, राइट, ये भी गलत सिलेक्शन था हमारा, फिर से ये बैक ट्रैक करेगा, एंड थर्ड टाइम इट विल चूज बीटा 3। अब ऐसा नहीं होता कि डायरेक्टली वो बीटा 3 चला जाएगा, बिकॉज द स्ट्रिंग इज अल्फा बीटा 3, तो अल्फा तो दिख रहा है, पार्सर को अल्फा तो दिख रहा है, लेकिन बीटा नहीं दिख रहा है, सेकंड सिंबल नहीं दिख रहा है इन मोस्ट ऑफ द केसेस, ठीक है। सो अल्फा तो दिख रहा है लेकिन ये बीटा 3 नहीं, दिस इज द प्रॉब्लम, ठीक है। इस प्रॉब्लम में कोई बहुत बड़ी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, बट द प्रॉब्लम इज ऑफ बैक ट्रैकिंग, ठीक है, हमें 2 बार बैक ट्रैक करना पड़ा टू गेट दिस अल्फा बीटा 3, राइट। तो इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, क्या करो इस ग्रामर में ताकि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। सी इफ यू सी केयरफुली, चाहे एम्बिग्यूटी हटाना हो, चाहे लेफ्ट रिकर्शन हटाना हो, और यहाँ पे नॉन डिटर्मिनिज्म भी अगर मैं इफ यू वांट टू रिमूव, देयर इज नो एल्गोरिदम, ओके, दिस इज प्योरली अ मैनुअल वर्क, ठीक है, जस्ट यूज योर कॉमन सेंस, इट विल बी डन। प्रॉब्लम ये आ रही है कि मुझे सिर्फ अल्फा दिख रहा है, मुझे बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 नहीं दिख रहा है, दैट इज व्हाई आई कैन नॉट टेक द डिसीजन इन द फर्स्ट इंस्टेंस, ओके, एक ही अटेम्प्ट में मैं सेलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, सो ऐसा क्या करूँ कि बीटा भी दिखने लग जाए सारे। एनी आइडिया? या साइन अनदर सिंबल, गुड। सी अल्फा तो पक्का आ रहा है ना, तो ए टेंड्स टू अल्फा, ये अल्फा से स्टार्ट हो रहा है, अल्फा तो पक्का आ रहा है, तो यहां तक तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। इसके बाद बीटा नहीं दिख रहा है, तो बीटा को किसी और में दे दो, लेट्स जस्ट गिव बीटा टू अनदर सिंबल ए डैश। अब ये ए डैश की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसे बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3, क्योंकि जनरली सी व्हेन वी विल क्रिएट पार्सर्स ना, तो पार्सर्स को हमेशा फर्स्ट सिंबल दिखेगा, जब भी LL1 पार्सर बनाएंगे तो इसमें जो 1 होता है इसका मतलब होता है लुक अहेड, कितने सिंबल पार्सर एक बार में देख सकता है, तो जनरली लेस कॉम्प्लेक्स पार्सर्स आर ऑलवेज 1 से ज्यादा नहीं जाते हैं जनरली हम लोग, प्रैक्टिकली, थ्योरेटिकली तो जा सकते हो, पर प्रैक्टिकली, राइट। तो पार्सर को हमेशा एक सिंबल दिखेगा, यहाँ पे पार्सर वाज एबल टू सी अल्फा, तीनों में वो अल्फा एक साथ देख सकता है, तीनों में वो अल्फा एक साथ देख सकता है, लेकिन बाद वाला सिंबल नहीं देख पा रहा था, राइट। तो हमने क्या किया, जो नहीं देख पा रहा था उसको उठा के किसी और सिंबल को दे दिया। नाउ व्हाट विल हैपन इफ सपोज द सेम थिंग, नाउ द पार्सर नीड्स अल्फा बीटा 3, सो ऑब्वियसली इट हैव टू स्टार्ट विद द स्टार्ट सिंबल ए, तो ए से तो स्टार्ट करेगा, ए से स्टार्ट करने पे इट विल गेट अल्फा ए डैश, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, तो हमें वैसे भी चाहिए था। नाउ इस ए डैश को एक्सपेंड करना, ए डैश के पास 3 ऑप्शन है और ये तीनों ही पार्सर एक बार में देख सकता है, राइट, एक सिंबल तो देख सकता है ना, तो एक सिंबल वो डायरेक्टली देख सकता है कि बीटा 1 चाहिए, बीटा 2 3 चाहिए, बीटा 3 चाहिए, सो दिस विल बी एक्सपेंडेड टू बीटा 3, एंड द प्रॉब्लम ऑफ बैक ट्रैकिंग इज सॉल्व्ड, ओके। एंड दिस इज नोन एज, दिस प्रॉब्लम इज नोन, दिस सॉल्यूशन इज नोन एज लेफ्ट फैक्टरिंग, ठीक है। अगर ये नॉन डिटर्मिनिज्म हटाना है ग्रामर से, सो द सॉल्यूशन टू रिमूव नॉन डिटर्मिनिज्म इज लेफ्ट फैक्टरिंग। नाम बहुत बड़ा है लेकिन काम का मतलब यही है कि जो कॉमन है उसको बाहर कर दो, अल्फा कॉमन था तो अल्फा को बाहर कर दिया, ओके। लेट्स सी अनदर एग्जांपल, इसमें डाउट किसी को? Suppose you have a grammar like this, I tends to I, E, T, S, or I, E, T, S, E, S, or A. E tends to B. Tell me, is there non-determinism in the grammar? मतलब है बहुत सारे प्रीफिक्सेस जो होंगे स्टार्टिंग में वो सेम होंगे, एक भी सेम हो सकता है, तो यहाँ तो देखो सेम है ना बहुत सारे, अगर यहां से लेके टिल दिस पॉइंट इज सेम, है ना, टिल दिस पॉइंट इट इज सेम, कहां पे टर्मिनल है? हाँ लेकिन पार्ट तो सेम है ना, पूर्विजा, सिंबल तो सेम है ना, सिर्फ वर्टेक्स सेम होना जरूरी नहीं है। पिछली बार भी तो अल्फा बीटा 3 था ना, अल्फा भी तो टर्मिनल और नॉन टर्मिनल था, टर्मिनल होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज अगर टर्मिनल भी सेम है तो मतलब सेम टर्मिनल, अगर सपोज ई एक टर्मिनल है, सो दिस टर्मिनल कैन ऑल्सो बी एक्सपेंडेड टू द सेम थिंग ना, अगर ई को मैं बी में कर सकता हूँ यहाँ पे भी आई ई टी एस में, तो ये वाला जो आई ई टी एस ई एस है इसमें भी तो मैं इस
ई को बी में एक्सपैंड कर सकता हूँ, राइट? टर्मिनल्स कैन बी एक्सपेंडेड टू सेम नॉन टर्मिनल्स, दैट इज द थिंग। सो अगर टर्मिनल सेम है तो नॉन टर्मिनल्स भी सेम हो सकते हैं ना, हो सकता है सबको मैं बी में एक्सपैंड करूं। दिस इज द प्रॉब्लम, क्योंकि कंपाइलर को खाली ई दिखेगा, आई दिखेगा, राइट? दोनों में आई दिख रहे हैं, कंपाइलर विल गेट कंफ्यूज्ड, ठीक है? अगर आई वाली खाली, अच्छा ये भी हो सकता है खाली आप आई की प्रॉब्लम सॉल्व करो, बट खाली आई की प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो ई और टी फिर आ जाएंगे, राइट? तो एक साथ कोशिश करो जितने कॉमन, द मैक्सिमम कॉमन प्रीफिक्सेस यू कैन आइडेंटिफाई, यू रिमूव देम। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इतने कॉमन प्रीफिक्सेस मुझे दिख रहे हैं, आई ई टी एस। सो व्हाट आई विल डू, इस एस की रिस्पॉन्स जो भी कॉमन है उसको बाहर कर दो, आई ई एस ये कॉमन था, इसको बाहर कर दिया, इसके सिवा जो भी बचा उसको किसी डिफरेंट वेरिएबल को सप्लाई कर दो, लाइक एस डैश। इस ए को यहीं छोड़ सकते हैं, इस ए की कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? इस ए को तो यहीं छोड़ सकते हैं ना, ए का कोई मतलब नहीं था। अब इस एस डैश की रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या, एस डैश की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ई एस और एप्सिलॉन ऑल्सो। क्यों एप्सिलॉन? क्योंकि ये जो एस था, दिस एस वाज गिविंग यू आई ई टी एस ऑल्सो, राइट? तो अगर खाली एस से आई ई टी एस चाहिए तो यहाँ पे एप्सिलॉन रखना पड़ेगा ना, तभी आएगा। बेसिकली कॉमन लेना है, टू टेक द कॉमन। अगर इस पूरे में से, इस पूरी इक्वेशन में से मैंने आई ई टी एस को कॉमन ले लिया तो पहले पार्ट में क्या बचा, यहाँ बचा एप्सिलॉन और यहाँ बचा ई एस, लाइक दैट। गेटिंग एवरीवन? पूरे पार्ट में से अगर मैंने कॉमन ले लिया, जैसे अगर होता है ना, सपोज 2 + 4 है, इसमें से मैंने 2 कॉमन ले लिया बाहर, तो पहले में 1 बचा, फिर 2 बचा, राइट? सेम थिंग इज हियर। अगर पूरे पार्ट में से मैंने आई टी एस कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा एप्सिलॉन, यहाँ बचा ई और एस, और जो नीचे बी था वो एज इट इज रहेगा, लाइक दिस। गॉट दिस? दिस इज नोन एज लेफ्ट फैक्टरिंग। लेफ्ट फैक्टरिंग, लेफ्ट फैक्टरिंग का मतलब होता है फैक्टर्स, मतलब यू अंडरस्टैंड राइट, कॉमन कॉमन मल्टीपल्स। सो बस लेफ्ट फैक्टरिंग का मतलब सारे कॉमन मल्टीपल्स को लेफ्ट साइड में खींच के निकाल लिया, लाइक दिस। जो बच गया उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी दूसरे वेरिएबल को दे दी। दिस इज हाउ यू रिमूव नॉन डिटर्मिनिज्म फ्रॉम योर ग्रामर, ठीक है? अब ये ग्रामर इज योर क्लासिकल एग्जांपल ऑफ योर डैंगलिंग एल्स प्रॉब्लम। डैंगलिंग एल्स प्रॉब्लम पता है ना सबको? अगर सपोज 2 इफ है और नीचे एल्स लगा हुआ है तो वो किसके साथ अटैच्ड है, बेसिकली सिंपली, है ना? अगर सपोज एक इफ यहाँ पे है, एक इफ सपोज यहाँ पे है, एक एल्स नीचे लटका हुआ है, अब ये एल्स इस इफ के साथ है या इस इफ के साथ है, किसके साथ है ये एल्स? दैट इज व्हाट इज नोन एज डैंगलिंग एल्स प्रॉब्लम। किसके साथ अटैच होता है जब प्रोग्रामिंग करते हो, बताओ? सपोज यू हैव 2 इफ लाइक दिस, कोई ब्रैकेट ब्रैकेट नहीं है, ब्रैकेट लगा के इंडेंटेशन यू कैन गिव, वो तो सॉल्यूशन ठीक है, बट सपोज विदाउट ब्रैकेट्स यू आर यूजिंग 2 इफ एंड 1 एल्स, तो ये एल्स अटैच होगा। अरे नियरेस्ट वाले के साथ होता है भाई, सबसे पास में उसके साथ अटैच होता है, सिंपल, ठीक है? सो दिस इज योर डैंगलिंग एल्स प्रॉब्लम। नाउ ये जो ग्रामर थी पहले, क्या ये एम्बिगुअस ग्रामर है? इज दिस एम्बिगुअस ग्रामर? सी इन द एग्जाम इफ आई say that this is a grammar, show me that this is not ambiguous, उसका मतलब है कि ये ग्रामर डेफिनेटली एम्बिगियस नहीं है, आपको शो करना है मुझे, बट मैंने आपको कोई स्ट्रिंग नहीं दी है। नाउ इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि कोई भी रैंडम स्ट्रिंग लो इस ग्रामर से, कोई भी रैंडम स्ट्रिंग लो इस ग्रामर से और शो करो उसके। ओके, इज दिस ग्रामर अनएम्बिगियस ग्रामर? नॉट एम्बिगियस? चलो इसको करके देख लेना, वैसे ये एम्बिगियस है। ओके, दिस इज एम्बिगियस ग्रामर। ओके, दिस इज अ एम्बिगियस ग्रामर, मतलब किसी एक स्ट्रिंग के लिए एक से ज्यादा पास स्ट्रिंग मिलेंगे और बहुत डिफिकल्ट नहीं होती आइडेंटिफाई करना। ओके, रैंडमली कोई भी स्ट्रिंग ले लो, जनरली मिल जाता है उसके लिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्ट्रिंग ले सकते हो आई ई टी
ठीक है, फिर you instead of string you just try to create parse trees. Okay, you just try to create parse trees, different parse trees बनाने की कोशिश करो सेम स्ट्रिंग के लिए. s को एक्सपैंड करो, i e t s. सपोज ये एक्सपेंशन ले लिया मैंने, इस e को मैंने एक्सपैंड कर दिया, सपोज इस s को एक्सपैंड कर दिया मैंने, i e t s e s. First time I took this production, second time I took this production. ठीक है, तो क्या स्ट्रिंग मिल रही है? I E T. डेफिनेटली ये जो E है दिस विल बी एक्सपेंडेड टू B ऑल्सो, ये भी एक्सपैंड होगा B में, बट सपोज अभी के लिए नहीं करते हैं. अगर T I E T S E S है ना, इस वाले पार्स ट्री से ये स्ट्रिंग मिल रही है. नाउ लेट्स ट्राई टू क्रिएट अनदर पार्स ट्री. S से I E T S. नहीं, नाउ लेट्स टेक द फर्स्ट वन, सेकेंड वन. इसकी जगह ये वाला लेते हैं पहले. S टेंड्स टू I E T S E S. मुझे ये चाहिए, राइट? सो दिस S कैन बी एक्सपेंडेड टू I E T S. ठीक है, इस पास ट्री का यील्ड क्या है? I E T I E T I E T S I E T S और E S. मिल गया सेम यील्ड. बहुत ज्यादा नहीं जाना पड़ता है, बस दो इस तरह पास ट्री बना के करोगे सो इट्स इजी. स्ट्रिंग गॉट दिस एवरीवन? पहली बार में ये प्रोडक्शन लिया और इस वाले x को एक्सपैंड कर दिया इसमें. सेकेंड टाइम में ये वाला प्रोडक्शन लिया बड़ा वाला और इस वाले s को एक्सपैंड कर दिया छोटे वाले में. सो सेम स्ट्रिंग के लिए वी आर गेटिंग टू पास ट्री. सो दिस इज अ एम्बिगुअस ग्रामर. ठीक है, अब इसके बाद वी हैव रिमूव्ड इन नॉन डिटर्मिनिज्म, राइट? इसमें से नॉन डिटर्मिनिज्म हटाया था, ये ग्रामर कुछ ऐसी बन गई थी. S dash tends to epsilon, यहाँ पे ES, E tends to B, right? When we remove non-determinism, this grammar became something like this. तो क्या non-determinism हटाने से ambiguity हट गई है? क्या ये unambiguous grammar बन गया अब? क्योंकि पहले हमने देखा इसमें ambiguity भी थी और non-determinism भी था, right? इसमें ambiguity भी थी और non-determinism भी था. हमने non-determinism तो हटा दिया, तो क्या ambiguity भी हट गई? This is the question. Understand the question first, everyone. Earlier in this grammar there was non-determinism and there was ambiguity also. This grammar was ambiguous. ठीक है, फिर हमने determinism तो हटा दिया by doing left factoring like this. We have removed non-determinism. क्या ambiguity भी हट गई अपने आप या नहीं? क्या non-determinism हटाने से ambiguity हटी है? ठीक है, इसमें भी ambiguity है. फिर से पार्स ट्री बनाने की कोशिश करो, दो पार्स ट्री मिल जाएंगे स्ट्रिंग के लिए. ओके, ambiguity नहीं हटी है इस ग्रामर. दिस इज ऑल्सो अगेन ambiguous. ओके, ये ग्रामर अभी भी ambiguous है. Okay, so overall what I wanted to say to you is we have seen three problems. We have seen ambiguous grammars or ambiguity problem, we have seen left recursion problem and we have seen non-determinism problem. तीनों को हटाने के हमने तरीके देख लिए. अगर ambiguity हटानी है तो associativity और precedence rules लगाओ, या उसी की बात कर रहे हैं अभी, उसी की बात कर रहे हो बेचारे. Okay, if you want to remove ambiguity, you introduce associativity and प्रेसिडेंस रूल्स. ठीक है, जो ऑपरेटर लेफ्ट एसोसिएटिव उसको लेफ्ट बनाओ, जो राइट है उसको राइट बनाओ, और प्रेसिडेंस रूल्स लगाओ. जो ऑपरेटर हाईएस्ट प्रेसिडेंस रखता है उसको ग्रामर में सबसे नीचे लिखो, जो लोएस्ट प्रेसिडेंस रखता है उसको ग्रामर में सबसे ऊपर लिखो. देन वी हैव सीन द प्रॉब्लम ऑफ लेफ्ट रिकर्शन. लेफ्ट रिकर्शन हटाने के लिए हमने देखा सबसे पहले लैंग्वेज आइडेंटिफाई करो, फिर उसके लिए इक्विवेलेंट राइट रिकर्सिव ग्रामर लिख दो, राइट? देन वी हैव सीन नॉन डिटर्मिनिज्म, जिसमें बैक ट्रैकिंग की प्रॉब्लम होती है. इसको रिमूव करना है तो जितना भी कॉमन पार्ट है उसको खींच के लेफ्ट साइड में रख दो, बाकी सब कुछ किसी दूसरे वेरिएबल में दे दो.
Okay, no grammar can handle ambiguous, no parsers can handle ambiguous grammars. कोई भी parser ambiguous grammar handle नहीं कर सकता है. No parser can handle ambiguous grammar apart from one parser. एक्सेप्शन है इसमें एक, वो बाद में देखेंगे. दो तरह के पार्सर्स होते हैं, टॉप डाउन बॉटम अप. ठीक है, टॉप डाउन पार्सर्स कैन नॉट हैंडल लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर्स. टॉप डाउन नहीं कर लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर को हैंडल. ठीक है, और नॉन डिटर्मिनिज्म भी टॉप डाउन पार्सर्स नहीं कर सकते, उसमें बैक ट्रैकिंग होगी इसलिए. अब नेक्स्ट थिंग इज देयर इज नो रिलेशन बिटवीन एम्बिग्यूटी, लेफ्ट रिकर्शन एंड नॉन डिटर्मिनिज्म. ऐसा हो सकता है कि ग्रामर में से एम्बिग्यूटी हटाओ, उसके बाद ग्रामर लेफ्ट रिकर्सिव बन जाए या नॉन डिटर्मिनिज्म आ जाए ग्रामर में. ऐसा हो सकता है कि ग्रामर से लेफ्ट रिकर्शन हटाओ तो ग्रामर में एम्बिग्यूटी भी आ जाए. देयर इज नो रिलेशन बिटवीन दीज थ्री. तीनों एक साथ भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, तीनों में से कुछ एग्जिस्ट कर सकते हैं, इनमें से कोई एक प्रॉब्लम हटाओ तो दूसरी हट जाए, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है. ओके, दिस एग्जांपल वी हैव सीन, नॉन डिटर्मिनिज्म भी था, एम्बिग्यूटी भी थी. वी हैव रिमूव द नॉन डिटर्मिनिज्म बट एम्बिग्यूटी रिमूव नहीं हुई. ओके, सो देयर इज नो रिलेशन बिटवीन दीज थ्री. अब क्या तुम्हारा क्वेश्चन पूछा, इट इज पॉसिबल दैट अ ग्रामर कैन बी एम्बिगुअस, लेफ्ट रिकर्सिव एंड नॉन डिटर्मिनिज्म एज वेल. यस, सब होंगे, पॉसिबल है. एक ग्रामर में तीनों भी हो सकते हैं. ठीक है, जनरली ऐसे ग्रामर सर देन उस केस में तो फिर तीनों हटाने पड़ेंगे, मतलब एक एक करके, तो वो तीनों बहुत हटाने ज्यादा पड़ेंगे जल्दी. आपको, बहुत ज्यादा लेंदी होगा. 10-15 नंबर का क्वेश्चन आएगा एग्जाम में. ओके. और अभी काम खत्म नहीं होगा, ये तीनों हटाने के बाद इसके लिए आपको LL1 पार्सर भी बनाना पड़ेगा, तो वो क्वेश्चन 20 नंबर का हो जाता है. ठीक है, जब पार्सर्स हम पढ़ेंगे उसमें एक LL1 पार्सर होता है. टॉप डाउन पार्सर में सबसे पहली कैटेगरी है LL1 पार्सर. तो अगर सपोज मैं आपको एक ग्रामर दे दूंगा, इफ आई एम सेइंग यू देयर इज अ पार्सर नोन एज LL1, दिस इज अ टॉप डाउन पार्सर. इससे आपको क्या समझ में आया, क्या ये एम्बिगुअस ग्रामर हैंडल कर सकता है? नहीं कर सकता. एम्बिगुअस ग्रामर तो कोई हैंडल नहीं कर सकता अपार्ट फ्रॉम वन. क्या ये लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर हैंडल कर सकता है? नहीं कर सकता. हमने अभी देखा टॉप डाउन पार्सर्स लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर हैंडल नहीं कर सकते. क्या ये नॉन डिटर्मिनिज्म ग्रामर हैंडल कर सकता है? नहीं कर सकता. तो अगर मैंने कोई ऐसी ग्रामर दे दी जो कि एम्बिगुअस भी है, लेफ्ट रिकर्शन भी है, नॉन डिटर्मिनिस्टिक भी है. ओके, सपोज आई गिव यू ग्रामर जी जो एम्बिगुअस भी है, लेफ्ट रिकर्सिव भी है और नॉन डिटर्मिनिस्टिक भी है, और मैंने बोला इस ग्रामर जी के लिए यू क्रिएट अ पार्सर LL1 पार्सर बनाओ इसके लिए. तो फर्स्ट स्टेप आपको ये करना है, यू हैव टू चेक और यू हैव टू रिमूव द एम्बिग्यूटी. पहले एम्बिग्यूटी हटाओगे एसोसिएटिविटी और प्रेसिडेंस रूल लगा के, फिर लेफ्ट रिकर्शन हटाओगे, फिर नॉन डिटर्मिनिज्म हटाओगे. इतना बड़ा नहीं होता है, दीज आर थ्री थ्री लाइंस ओनली, है ना, इतना बड़ा कहाँ है ये. एम्बिग्यूटी हटाने में ग्रामर को फिर से लिखना है, तो वो सेम ग्रामर 3 लाइन में आ जाएगी. लेफ्ट रिकर्शन हटाने के लिए फिर से वो 2 लाइन में आ जाएगी, और नॉन डिटर्मिनिज्म में सिर्फ कॉमन लेना है. ओके, टोटल 7 से 8 लाइन का काम होगा ये. तो पहले ये सारी चीजें हटाओगे, उसके बाद वी विल क्रिएट दी LL1 पार्सर. सपोज ये हटाने में आप नहीं हटा पाए, ठीक है. अच्छा, एक चीज और, कैन यू रिमूव एम्बिग्यूटी फ्रॉम एवरी ग्रामर? कैन यू रिमूव मैंने आपको एक ग्रामर दे दी दैट इज एम्बिगुअस ग्रामर. इज इट पॉसिबल कि हर ग्रामर से एम्बिग्यूटी रिमूव हो सकती है? ये पॉसिबल नहीं है. हर ग्रामर से एम्बिग्यूटी रिमूव नहीं हो सकती. कुछ इनहेरेंटली एम्बिगुअस ग्रामर्स होते हैं. देयर इज अ टर्म, अब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके सिलेबस के लिए, बट देयर इज अ टर्म नोन एज इनहेरेंटली एम्बिगुअस ग्रामर्स. वो ग्रामर अंदर से इनहेरेंटली एम्बिगुअस होते हैं, उनकी एम्बिग्यूटी आप रिमूव नहीं कर सकते ये सब छोटे मोटे काम करके, कि एसोसिएटिविटी लगा दूं, प्रेसिडेंस लगा दूं, वो अनएम्बिगुअस बन जाए. ऐसा नहीं होता है हमेशा. कुछ ग्रामर्स ऐसी होती है जो हमेशा एम्बिगुअस होती हैं, उनकी एम्बिग्यूटी आप रिमूव नहीं कर सकते. क्या उनके लिए पार्ट बना सकते हैं? क्या उसके लिए L1 पार्सर बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे. The answer stops then and there itself. Okay, so you cannot remove ambiguity from every possible grammar. That is the overall conclusion. Okay, so Friday you have a extra class from 11 to 12. We will start with the parsers there. Okay, the first parsers we will see the top down parsers. LL1 से start कर लेंगे. Any doubts, anyone? Sunday you have your test. Timing I will inform you. And one assignment I will mail you today. ठीक है, कोई डाउट है किसी को, पूछना है कुछ? ठीक.
Okay then, thank you. Okay, we'll meet on Friday.